سعادت حسن منٹو کی برسی پر ایک افسانہ آپ کی نظر۔ جاوید مسعود سے میرا اتنا گہرا دوستانہ تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا اور میں اس پر۔ ہر روز قریب 10-12 گھنٹے ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو کبھی اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کہتا سگ باش، اور برادر خرد باش، اور کبھی کبھی گھنٹوں خاموش رہتا جیسے خلا میں دیکھ رہا ہو۔ میں اس کے ان لمحات سے تنگ آ کر جب زور سے پکارتا جاوید جاوید، یہ کیا بےہودگی ہے، وہ ایک دم چونکتا اور معذرت کرتا، او سعادت بھائی معاف کرنا، اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس وقت بالکل خالی ذہن ہوتا۔ میں کہتا بھائی جاوید دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں کن گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر جاوید بہت ہنستا، پاگل ہونا بہت مشکل ہے سعادت، لیکن آہستہ آہستہ اس کی خلائیں دیکھنا بڑھتا گیا اور اس کی خوشی طویل سکوت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پیاری سی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر ہر وقت کھلتی رہتی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ تم ٹھہرے پانی بن گئے ہو، ہوا کیا ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھ سے تو اپنا راز نہ چھپاؤ۔ جاوید خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لان تان کی تو اس نے اپنی زبان کھولی۔ میں کالج سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے قریب آؤں گا، اس وقت تمہیں جو پوچھنا ہوگا بتا دوں گا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 1:30 بجے میرے یہاں آ گیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت، اس میں نسوانیت کی جھلک تھی۔ پڑھائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں روگ ہے یا سوگ ہے، بہرحال تم نارمل حالت میں نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، ہاں اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بوکھلا گیا۔ جاوید کی عمر بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ وہ خود ایک خوبرو دوشیزہ کی مانند تھا۔ اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے؟ وہ تو کنواری لڑکیوں سے بھی کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ ایک دہکتی دوشیزہ ہے جس نے پہلی دفعہ کوئی عشقیہ فلم دیکھی ہے۔ آج وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آخر میں نے پوچھا کس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جھیپ محسوس نہ کی۔ ایک لڑکی ہے زاہدہ، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت ہے اور بھولی بھالی۔ چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو پھر اس اداسی کا مطلب کیا ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا سعادت تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے زاہدہ سے تمہارا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست سعادت ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے کہہ دیا، اور زاہدہ نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا ہے کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ اسے میری وہ چیز پسند ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ بولو چلو گے اپنی بھابھی کو دیکھنے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس سے کیا کہوں۔ اس کے پتلے پتلے نازک ہونٹوں پر لفظ بھابھی سجتا نہیں تھا۔ میری بات کا جواب دو۔ میں نے سرسری طور پر کہہ دیا چلیں گے، ضرور چلیں گے، پر کہاں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کل وہ شام 5 بجے کسی بہانے سے لارنس گارڈن آئے گی، آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا،
बल्कि खुद ही 5 बजे से पहले वहां पहुंच जाना। हम जिमखाना क्लब के इस तरफ लॉन में तुम्हारा इंतजार करते होंगे। मैं इनकार कैसे कर सकता था, इसलिए कि मुझे जावेद से बेहद प्यार था। मैंने वादा कर लिया, लेकिन मुझे इस पर कुछ तरस आ रहा था। मैंने इससे अचानक पूछा, लड़की शरीफ और पाकबाज है ना? जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मैं जाहिदा के बारे में ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता और ना सुन सकता हूं। तुम्हें अगर इससे मिलना है तो कल शाम ठीक 5 बजे लॉरेंस गार्डन पहुंच जाना। खुदा हाफिज। जब वो उठकर एकदम चला गया तो मैंने सोचना शुरू किया। मुझे बड़ी नदामत महसूस हुई कि मैंने क्यों इससे ऐसा सवाल किया जिससे इसके जज्बात मजरूह हुए। आखिर वो इससे मोहब्बत करता था। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं वो बदकिरदार हो। जावेद मुझे अपना मुखलिस तरीन दोस्त यकीन करता था। यही वजह है कि वो नाराज़गी के बावजूद मुझसे बरहम ना हुआ और मुझको जाते हुए कह गया कि वो शाम को लॉरेंस गार्डन आए। मैं सोचता था कि मैं जाहिदा से मिलकर किस किस्म की बातें करूंगा। बेशुमार बातें मेरे जहन में आईं, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि किसी दोस्त की महबूबा से की जाए। मेरे मुताल्लिक़ खुदा मालूम इसने क्या कुछ कह चुका था। यकीनन इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार बड़े वालेहाना तौर पर किया होगा। ये भी हो सकता है कि जाहिदा के दिल में मेरी तरफ से हसद पैदा हो गया हो, क्योंकि औरतें अपने आशिकों की मोहब्बत बांटती नहीं। शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए इसने जावेद से कहा हो कि तुम मुझे अपने प्यारे दोस्त से ज़रूर मिलवाओ। बहरहाल मुझे अपने अजीज़ तरीन दोस्त की महबूबा से मिलना था। इस तकरीब पर मैंने सोचा कोई तोहफा ले जाना चाहिए। रात भर गौर करता रहा। आखिर एक तोहफा समझ आया कि सोने के टॉप्स ठीक रहेंगे। अनारकली गया तो सब दुकानें बंद। मालूम हुआ कि इतवार की तातील है, लेकिन एक जौहरी की दुकान खुली थी। इससे टॉप्स खरीदे और वापस घर आया। 4 बजे तक शशोपंज में मुब्तला रहा कि जाऊं या ना जाऊं। मुझे कुछ हिजाब सा महसूस हो रहा था। लड़कियों से बेतकल्लुफ बातें करने का मैं आदी नहीं था, इसलिए मुझ पर घबराहट का आलम तारी था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर सोना चाहा, मगर करवटें बदलता रहा। टॉप्स मेरे तकिए के नीचे पड़े थे। ऐसा लगता था कि 2 दहकते हुए अंगारे हैं। उठा, गुस्ल किया, इसके बाद शेव, फिर नहाया और कपड़े बदलकर बड़े कमरे में क्लॉक की टिक टिक सुनने लगा। 3 बज चुके थे। अखबार उठाया, मगर इसकी एक खबर भी ना पढ़ सका। अजब मुसीबत थी। इश्क मेरा दोस्त जावेद कर रहा था और मैं एक किस्म का मजनू बन गया था। मेरा बेहतरीन सूट रिंकन का सिला हुआ मेरे बदन पर था। रुमाल नया, शू भी नए। मैंने ये सिंगार इसलिए किया था कि जावेद ने जो तारीफ के पुल जायदा के सामने बांधे हैं कहीं टूट ना जाएं। 4:30 बजे मैं उठा, अपने रेले की सब साइकिल ली और आहिस्ता आहिस्ता लॉरेंस गार्डन रवाना हो गया। जिमखाना क्लब की तरफ लॉन में मुझे जावेद दिखाई दिया। वो अकेला था। इसने जोर का नारा बुलंद किया। मैं जब साइकिल से उतरा तो वो मेरे साथ चिमट गया। कहने लगा, तुम पहले ही पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। जायदा अब आती ही होगी। मैंने इससे कहा था कि मैं अपनी कार भेज दूंगा, मगर वो रजामंद ना हुई। तांगे में आएगी। जावेद के बाप की एक कार थी, बेबी ऑस्टन। खुदा मालूम किस सदी का मॉडल था। ज्यादातर ये जावेद के इस्तेमाल में आती थी। लॉरेंस गार्डन में दाखिल होते वक्त ये अजूबा रोजगार मोटर देख ली थी। मैंने इससे कहा, आओ बैठ जाएं, लेकिन वो रजामंद ना हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करो, बाहर गेट पर जाओ, एक तांगा आएगा जिसमें एक दुबली पतली लड़की स्याह बुर्का पहने होगी। तुम टांगे वाले को ठहरा लेना और इससे कहना जावेद का दोस्त सादत हूं। इसने मुझे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है। नहीं जावेद, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। लाहौल विल्ला, जब तुम नाम बता दोगे तो उसे चूं करने की भी जुर्रत नहीं होगी। तुम्हारी जुर्रत का सवाल ही कहाँ पैदा होता है यार। जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे बाद में याद करके आदमी महजूज हो सके। जब जायदा से मेरी शादी हो जाएगी तो हम आज के इस वाक़ये को याद करके खूब हंसा करेंगे। जाओ मेरे भाई, वो बस आती ही होगी। मैं जावेद का कहना कैसे मोड़ सकता था। बादल नखास्ता चला गया और गेट से कुछ दूर खड़ा रहकर इस तांगे का इंतजार करने लगा जिसमें जायदा अकेली काले बुरके में हो। आधे घंटे बाद एक तांगा अंदर दाखिल हुआ जिसमें एक लड़की काले रेशमी बुरके में मलबूस पिछली नशस्त पर टांगे फैलाए बैठी थी।
मैं झेपता सिमटता डरता आगे बढ़ा और टांगे वाले को रोका। इसने फौरन अपना टांगा रोक लिया। मैंने इससे कहा, ये सवारी कहाँ से आई है? टांगे वाले ने ज़रा सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। बुर्कापोश लड़की ने महीन सी आवाज़ में टांगे वाले को डांटा, तुम शरीफ आदमियों से बात करना भी नहीं जानते। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आपने टांगा क्यों रोका था जनाब? मैंने हकला के जवाब दिया, जावेद, मैं जावेद का दोस्त सादत हूँ। आपका नाम जायदा है ना? इसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके मुतालिक इनसे बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ। इसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इस तरह मिलूं और देखूं कि आप मुझसे किस तरह पेश आती हैं। वो इधर जिमखाना क्लब के पास घास के तख्ते पर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। इसने अपनी नकाब उठाई, अच्छी खासी शक्लो सूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप अगली नशिस्त पर बैठ जाएं, मुझे एक ज़रूरी काम है, अभी चंद मिनटों में लौट आएंगे। आपके दोस्त को ज़्यादा देर तक घास पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगली नशिस्त पर कोचवान के साथ बैठ गया। टांगा असेंबली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने टांगे वाले से कहा, भाई साहब, यहाँ कोई सिगरेट वाले की दुकान हो तो ज़रा देर के लिए ठहर जाना, मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। ज़रा आगे बढ़े तो सड़क पर एक सिगरेट पान वाला बैठा था। टांगे वाले ने अपना टांगा रोका। मैं उतरा तो जाहिदा ने कहा, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, ये टांगे वाला ले आएगा। मैंने कहा, तकलीफ़ की क्या बात है, और इस पान सिगरेट वाले के पास पहुंच गया। एक डब्बा गोल्ड फ्लैग की ली और एक माचिस और 2 पान। जब 5 के नोट से बाकी पैसे लेकर वापस मुड़ा तो कोचवान मेरे पीछे खड़ा था। इसने दबी जुबान में मुझसे कहा, हुजूर, इस औरत से बच के रहिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्यों? कोचवान ने बड़े वसूख से कहा, फहाशा है, इसका काम ही यही है कि शरीफ और नौजवान लड़कों को फंसाती रहे। मेरे टांगे में अक्सर बैठती है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने टांगे वाले से कहा, खुदा के लिए तुम उसे वहीं छोड़ कर आओ जहां से लाए हो। कह देना कि मैं इसके साथ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरा दोस्त वहां लॉरेंस गार्डन में इंतजार कर रहा है। टांगे वाला चला गया। मालूम नहीं इसने जाहिदा से क्या कहा। मैंने एक दूसरा टांगा लिया और सीधा लॉरेंस गार्डन पहुंचा। देखा जावेद एक खूबसूरत लड़की से महवे गुफ्तगू है। वो बड़ी शर्मीली और लजीली थी। मैं जब इसके पास आया तो इसने फौरन अपना दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जावेद ने बड़ी खफकी आमेज लहजे में कहा, तुम कहाँ गारत हो गए थे? तुम्हारी भाभी कब से आई बैठी है। समझ में ना आया क्या कहूं। सख्त बौखला गया। इस बौखलाहट में ये कह गया कि वो कौन थी जो मुझे टांगे में मिली। जावेद हंसा, मजाक ना करो मुझसे, बैठ जाओ और अपनी भाभी से बातें करो, ये तुमसे मिलने की बहुत मुश्ताक थी। मैं बैठ गया और कोई सलीके की बात ना कर सका, इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग पर वो लड़की या औरत मुसल्लत हो गई थी जिसके मुतालिक टांगे वाले ने मुझसे बड़े खुलूस से बताया था कि फहाशा है।